Today we will start our new chapter, chapter number 7, which is permutation and combination. And before starting with permutation and combination, one main topic is there, which is fundamental counting principle. So first, let us learn what do you mean by fundamental counting principle. I am starting with one example here, which is like, suppose you have 2 pairs of shoes and 3 pairs of socks. In how many ways can you wear them? आप में इसको किस तरीके से पहन सकते हैं स्टार्ट करेंगे. नाउ द पॉसिबल वेज ऑफ चूजिंग अ पेयर ऑफ शूज आर टू. हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ शूज हैं तो हमारे पास बस 2 ही पॉसिबिलिटी है उसको चूज करने की, यही 2 में से ही कोई एक हम पहन पाएंगे. एंड 3 पेयर्स ऑफ सॉक्स. सिंस 2 पेयर्स ऑफ शूज आर अवेलेबल विथ any pair of shoes, any of the 3 pairs of socks can be worn at a time. मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं पेयर ऑफ शूज को नाम देती हूँ फर्स्ट पेयर एंड सेकेंड पेयर, और हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ सॉक्स हैं. तो फर्स्ट पेयर ऑफ शूज के साथ मैं 3 में से कोई भी सॉक्स पहन सकती हूँ 3 पेयर ऑफ सॉक्स में, और सेकेंड पेयर ऑफ शूज में से भी मैं कोई से भी पहन सकती हूँ. तो उसको हम लोग इस फिगर के हिसाब से देखेंगे. हियर A1 and A2 represents the 2 pairs of shoes. B1, B2 and B3 represent 3 pairs of socks. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट A1 शूज जो है हमारे पेयर ऑफ शूज है, उनके साथ हम इन 3 पेयर ऑफ सॉक्स को रिलेट कर सकते हैं. आई मीन A1 के साथ B1, A1 के साथ ही B2 एंड A1 के साथ B3. तो फर्स्ट पेयर ऑफ शूज के साथ हमारे पास 3 चॉइसेस ऑफ सॉक्स आर देयर, एंड अगेन फॉर सेकेंड पेयर ऑफ शूज ऑल्सो वी आर हैविंग 3 चॉइसेस. तो हम लोगों ने कैसे पेयर किया, A1 के साथ B1 सॉक्स को, A1 शू के साथ B2 सॉक्स को, A1 शू के साथ B3 सॉक्स को. सिमिलरली A2 शूज के साथ B1 सॉक्स को एंड A2 के साथ B2, देन A2 के साथ B3. So I'm asking how many possibilities or ways you get here. So we get 2 into 3, that is 6 ways. 6 ways में हम इनको पेयर कर सकते हैं. Again having the same choice. So we get total 2 into 3, which is equals to 6. So 6 choices are there. Now, next one is, any of the ways we can arrange things where the order is important. When order is important, I am saying. So let us take one example. You want to visit the homes of 3 friends. Aman, we call it as A. Bridge, we call it as B. And Chandra, we call it as C. But haven't decided in what order. What choices do you have? आप किस ऑर्डर में विजिट करेंगे अमन, ब्रिज एंड चंद्र के घर पे? आंसर इज A, B, C. मैं ऑर्डर की बात कर रही हूँ, पहले अमन के घर पे, देन ब्रिज, देन चंद्र. ऐसे हम जा सकते हैं, या दूसरा ऑर्डर हो सकता है अमन, चंद्र, देन ब्रिज, अमन, चंद्र. इस तरीके से आपने ऑर्डर रैंडमली लगा दी. तो कितनी चॉइसेस आपके पास आई? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 पॉसिबल वेज है जिसमें आप इस ऑर्डर से 3 फ्रेंड्स के घर पे विजिट कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग. एनी ऑफ द वेज वी कैन कंबाइन थिंग्स व्हेन द ऑर्डर डज नॉट मैटर. फाइन, लेट अस टेक वन एग्जांपल. फॉर अ फ्रूट सैलेड, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 इंग्रेडिएंट्स कैन यू मेक विथ एप्पल, बनाना एंड चेरी? बहुत सिंपल है, randomly you can answer. Firstly, I can take apple and banana. Then I can take combination of apple and cherry. After that, banana and cherry. Total कितने ways आपको मिले, कितने combinations मिले? 1, 2 and 3. 3 combinations आपको मिले. एक और example पे, very interesting example is this. You are going to buy a new car. Availability क्या है वो देखते हैं. There are 2 body styles. First is sedan and next one is hatchback. And 5 colors are available here, which are as shown in this figure, and 3 models are there. One is standard model, we call it as GL. Next is sports model with bigger engine, we call it as SS. And next one is SL, that is luxury model with leather seats. तो हमने उसको GL, SS, SL नाम दिया है. Now, how many choices you are having here? Again, I am repeating. You want to buy a car only, one car, and 2 choices are there. 2 body styles of cars are available, 5 colors and 3 models. अब आप कैसे चूज करेंगे इसे? According to figure, this 2,
styles of car. ठीक है, first one and second one, fine. Now 5 colors. You can purchase this car, and for this car you have 5 colors, choice of 5 color. Now each color is having 3 models. ब्लैक कलर में भी है, GL, SS और SL अवेलेबल है. इस मस्टर्ड कलर में भी है, दिस क्रीम, ब्लू, लाइट ब्लू. सेम फॉर दिस अगेन. सेकंड कार जो है, जो स्टाइल है सेकंड कार की, उसमें भी 5 कलर्स आर अवेलेबल, एंड फॉर ईच कलर यू कैन हैव 3 मॉडल्स. सो टोटल कितनी चॉइसेस आपके पास हुई? यू कैन काउंट फ्रॉम दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे आप काउंट करते चलेंगे तो आपको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस. बट हाउ कैन वी गेट दिस? बाय सिंपल मल्टीप्लीकेशन. यहां से देखेंगे, टोटल 2 कार्स हैं, 2 चॉइसेस है हमारे पास. अगर हमको एक कार पसंद करनी है, खरीदनी है, तो इन 2 में से कोई एक पसंद करेंगे. तो चॉइसेस कितनी हुई हमारे पास? 2. हर एक कार के अपने अपने 5 कलर्स हैं. तो अगेन वी हैव नेक्स्ट चॉइस विच इज 5 कलर्स. तो हमने किया 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और हर कलर के 3 मॉडल्स हैं. तो वी मल्टीप्लाइड बाई 2 into 5 into 3, वी गेट 30. इन ऑल वी हैव 30 चॉइसेस. 30 चॉइस हो सकती है हमारे पास. अगर मैंने ये मॉडल पसंद किया, I mean, ये स्टाइल पसंद किया कार का, और मुझे ब्लैक कलर चाहिए, तो और उसमें मुझे SS मॉडल चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारे पास चॉइसेस है 30. 30 में से आपको कोई एक चॉइस एक चूज करनी है. नेक्स्ट पे आते हैं, एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट करेंगे अब सीधा. क्वेश्चन इज लाइक, हाउ मेनी 3 digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that repetition of the digits is allowed. आपको 3 digit नंबर फॉर्म करना है, और बोला ये गया है कि नंबर रिपीट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल 3 digit नंबर है, आई कैन टेक 111, I mean 111. I can take 222. डिजिट रिपीट हो सकते हैं. I can take 123 और I can take 245. पॉसिबल वेज हो सकते हैं. Let us see. Here these dash are showing the places, first, second and third. First position. You have total 5 numbers, 1, 2, 3, 4 and 5. अब बात ये हो रही है, इस फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? मैं 1 ले सकती हूँ, 2, 3, 4 या 5. इन 5 में से कोई भी मैं वैल्यू ले सकती हूँ. तो टोटल 5 चॉइसेस आर देयर. तो मैंने फर्स्ट प्लेस के लिए, फर्स्ट पोजीशन के लिए आई हैव 5 चॉइसेस. सिमिलरली फॉर सेकंड प्लेस अगेन आई कैन टेक एनी नंबर फ्रॉम द गिवन 5 नंबर्स. तो अगेन 5 चॉइस. थर्ड पोजीशन के लिए भी आई हैव 5 चॉइस. तो टोटल हमारे पास कितने पॉसिबल वेज हुए? 5 into 5 into 5, which is 125. So its answer is 125. Okay, next question. Repetition of the digit is not allowed. Again, those 5 numbers are given, 1, 2, 3, 4 and 5. But here, now this time, repetition is not allowed. देखते हैं. अब बात ये है, अगर मैंने फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, टोटल 3 पोजिशन आते हैं. अगर मैंने फर्स्ट पोजिशन पे 1 नंबर लिख दिया, इट मीन्स क्या? अब सेकंड पोजिशन के लिए मेरे पास सिर्फ 4 चॉइस रह गई. 1 नंबर आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर. फर्स्ट, मैं एग्जांपल दे रही हूँ. फर्स्ट पोजीशन पे सपोज आई हैव रिटन 1. 5 में से मैंने एक नंबर ऑक्यूपाई कर लिया 1 इस पोजीशन पे. तो बाकी इस नंबर के लिए, इस पोजीशन के लिए मेरे पास सिर्फ 4 चॉइस रह जाएंगी. कौन सी? 2, 4, 2, 3, 4 या 5. इन 4 चॉइसेस में से सिलेक्ट करना पड़ेगा. यहाँ सेकंड पोजीशन के लिए आई विल हैव ओनली 4 चॉइस, और फर्स्ट पोजीशन के लिए मुझे 5 में से कोई भी सिलेक्ट करना था. मैंने 5 में से कोई भी सिलेक्ट करना है, तो मैंने 5 चॉइसेस आर अवेलेबल. अगर हम 5 में से किसी एक नंबर को यहाँ पे रख देते हैं, तो बाकी सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास 4 नंबर्स बच जाएंगे. तो हमारे पास 4 चॉइसेस रह जाएंगी. सिमिलरली फॉर थर्ड पोजीशन, अगर मैंने कोई एक नंबर को सेकंड पोजीशन पे भी रख दिया, तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशंस आर नाउ ऑक्यूपाइड हियर. अब थर्ड पोजीशन के लिए मेरे पास 3 चॉइस रह जाएंगी. हमारा आंसर आएगा 5 into 4 into 3, which is 60. सिंपल एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास नंबर्स अवेलेबल हैं 1, 2, 3, 4 and 5. सपोज फर्स्ट पोजीशन मुझे फिल करनी है, तो मेरे पास 5 में से कोई भी नंबर्स हैं, मैं किसी को भी रख सकती हूँ. तो मेरे पास चॉइसेस कितनी है? 5 चॉइसेस. उन 5 में से सपोज मैंने कोई एक नंबर यहाँ पे रख दिया, लेट्स से 3. अब हमारे पास
कितने नंबर्स बाकी बच गए? अब हमारे पास बच गए 4 नंबर्स, क्योंकि 3 को मैं यहाँ ले चुकी हूँ। हमारे पास बच गए 1, 2, 4 और 5। अब मुझे सेकंड पोजीशन फिल करनी है। अब मुझे 1, 2, 4 और 5 में से कोई एक नंबर सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास चॉइसेस कितनी है? 4 चॉइसेस है। यहाँ पे आएगा फर्स्ट पोजीशन के लिए आई हैव 5 चॉइसेस, सेकंड पोजीशन के लिए आई हैव 4 चॉइसेस। अब मैंने सेकंड प्लेस पे कोई एक नंबर फिक्स कर दिया, फॉर एग्जांपल 1। तो फर्स्ट प्लेस पे मैं 3 रख चुकी हूँ, सेकंड प्लेस पे 1 रख चुकी हूँ। अब थर्ड प्लेस के लिए मेरे पास कौन कौन से नंबर्स की अवेलेबिलिटी है? 2, 4 और 5 की। 3 चॉइसेस आर देयर। सो हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, कैन टेक इधर 2 और 4 और 5। यहाँ पे आपको चॉइसेस या नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज लिखनी है। फर्स्ट पोजीशन के लिए मेरे पास 5 चॉइसेस थी, सेकंड के लिए एक नंबर क्योंकि ऑक्यूपाई हो गया तो सेकंड पोजीशन के लिए मेरे पास 4 चॉइस बची और थर्ड पोजीशन के लिए 3 चॉइसेस बची। ये 5, 4, 3 वो नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे 5 आएगा या 4 आएगा या 3 आएगा, ये पॉसिबल वेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टोटल आंसर आया 60 पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें हम उन 5 नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 डिजिट नंबर में विदाउट रिपीटिंग एनी नंबर। बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं इस एक्सरसाइज में। हाउ मेनी 3 डिजिट even numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 if the digits can be repeated। इन्होंने बोला है डिजिट्स रिपीट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 डिजिट नंबर है चाहिए तो मैं 333 ले सकती हूँ या 555 ले सकती हूँ। इट इज आवर विश। सो लेट अस सी। बट यस, बोला ये गया है कि वो इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर का आपको पता कैसे चलता है? यूनिट प्लेस से। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर बोला 27 और एक बोला 28। आपको कैसे पता चलेगा इन दोनों में से इवन कौन सा है? हम लोग यूनिट प्लेस देखेंगे, 7 और 8 को देखेंगे। आगे 2 स्टार्ट किससे हो रहा है उस नंबर से कोई मतलब नहीं है। लास्ट नंबर जो आई मीन यूनिट प्लेस पे यहाँ पे इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर दैट मीन्स कौन से होने चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। इन 5 में से कोई भी एक नंबर अगर यूनिट प्लेस पे आता है देन वी कैन से दैट द गिवन नंबर इज इवन नंबर। आगे कितने भी सारे डिजिट क्यों ना हो, यूनिट प्लेस से हम जज करते हैं वो नंबर इवन है कि नहीं। दैट आई थिंक यू ऑल शुड नो। अब हमारे पास हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए। यहाँ पे मैंने 3 प्लेसेस बनाई है, हंड्रेड्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड यूनिट्स प्लेस। अब बोला ये गया है कि इवन नंबर होना चाहिए तो हम लोग यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इवन नंबर का सिलेक्शन यूनिट प्लेस से होता है। यूनिट प्लेस पे यू कैन चूज 2, 4 और 6। 1, 3, 5 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें 3 डिजिट इवन नंबर चाहिए। तो यूनिट प्लेस पे वी हैव ओनली 3 चॉइस विच इज 2, 4 और 6। 3 में से कोई एक नंबर आएगा तो हमारे पास 3 चॉइसेस है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। और बाद में बोला ये गया है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। आगे आप कोई भी डिजिट, अगर सपोज मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है, 2 मैंने चूज किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब 2 बाकी इन 2 प्लेस पे नहीं आ सकता, दोनों पे भी आ सकता है। आई कैन राइट 222, वो नंबर हो सकता है क्योंकि इन्होंने रिपीट करना अलाउ किया है। तो बस आपको फोकस करना है यूनिट प्लेस पे क्योंकि इवन नंबर बोला गया है तो इवन नंबर इन 3 में से कोई भी हो सकते हैं, 2, 4, 6। तो हमारे पास यूनिट प्लेस के लिए 3 चॉइसेस रहेंगी। बाकी टेंस प्लेस पे आप इन 6 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कितने भी नंबर, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। सिमिलरली 100 प्लेस पे भी आप 6 में से कोई भी नंबर ले सकते हैं क्योंकि डिजिट रिपीट हो सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? 6 into 6 into 3। You have 3 choice, tens के लिए 6 and hundreds के लिए 6. Yes. How many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated? आपको फर्स्ट 10 लेटर्स जो है इंग्लिश अल्फाबेट के ABCDEFGHIJ अप टू जे में से 4 लेटर कोड बनाना है जिसमें से कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया EACD, ये मैंने एक 4 लेटर का कोड बनाया, आपकी मर्जी है। तो लेकिन फर्स्ट 10 लेटर्स में से होना चाहिए और जो आप कोड बनाओगे 4 लेटर्स का उसमें कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। जब भी नॉन रिपीटेशन, ऐसे नो रिपीटेशन की बात आती है तो एक एक करके वैल्यू चॉइसेस घटती जाती हैं, लेस होती जाती हैं। नंबर्स में नहीं होगा, बताऊंगी क्यों नहीं होगा। यहाँ पे अल्फाबेट की बात आ रही। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट प्लेस पे अल्फाबेट B ले लिया। फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस थी? 10 लेटर्स थे।
10 लेटर्स थे, मुझे फर्स्ट प्लेस पे 10 में से कुछ भी चूज करना है। हमारे पास 10 चॉइसेस है, 10 रख दिया। अब एक लेटर यहाँ पे ऑक्यूपाई हो चुका है, 10 लेटर्स में से एक लेटर फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्यूपाई हो चुका है, तो सेकंड पोजीशन के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस बचेंगी? ऑब्वियसली 9 बचेंगी, क्योंकि फर्स्ट के लिए 10 चॉइसेस थी, 10 में से मैंने कोई एक सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल बी, मैंने बी को यहाँ पे रख दिया। अब बी तो यहाँ ऑक्यूपाई हो चुका है, अब आपके पास यहाँ के लिए टोटल 9 लेटर्स ही बचे, उनमें से आपको कुछ सिलेक्ट करना है। तो 9 लेटर्स बचे, 9 चॉइसेस हैं, तो पहले में तो 10 आया, 10 चॉइसेस, सेकंड प्लेस के लिए यू हैव 9 चॉइसेस, सो 10 into 9। अब थर्ड के लिए कितनी चॉइसेस बचेंगी? 8, ऑब्वियसली, क्योंकि 2 लेटर्स यहाँ ऑक्यूपाई हो चुके हैं, 10 में से 2 ऑक्यूपाई हो चुके हैं, तो थर्ड पोजीशन के लिए यू हैव 3 चॉइसेस, तो हमने 8 लिखा। अब 3 लेटर्स ऑक्यूपाई हो गए आउट ऑफ 10, तो लास्ट पोजीशन के लिए ऑब्वियसली 7 चॉइसेस बचेंगी। तो आंसर देखते हैं, देखिए फर्स्ट पोजीशन के लिए 10 वेज आर देयर, for second position 9 ways are there, and for third 8, and for fourth 7 ways. In all you have 10 into 9 into 8 into 7, which is equal to 5040 ways of selecting code. How many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once? Now try to understand this question. 5-digit टेलीफोन नंबर है, जिसमें से इन्होंने ये बोला है वो स्टार्ट होना चाहिए 67 से। इट मीन्स व्हाट? 5 डिजिट्स है आपके पास, ठीक है। अवेलेबिलिटी 5 डिजिट्स के लिए है, मांग रहे हैं ये लोग, और ये बताया गया फर्स्ट और सेकंड प्लेस जो है वो 6 और 7 से बुक हो गई है, तो आपके पास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डिजिट आपको सिलेक्ट करना है। नाउ लिसन हियर, नंबर्स अवेलेबिलिटी किस कहां से है? 0 to 9, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक की। उसमें से 2 नंबर्स इन्होंने रख लिए हैं अपने पास, ऑक्यूपाई कर लिए हैं, 6 और 7। तो और बोला क्या गया है? नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। इट मीन्स व्हाट? बाकी इन 3 प्लेस पे 6 और 7 तो नहीं आ सकता है, दैट इज फॉर श्योर। 0 to 9 की अवेलेबिलिटी में से आप 6 और 7 को अवॉइड कीजिए। तो हमारे पास एक्चुअली 0 से 9 तक टोटल 10 नंबर्स होते हैं, 9 मत सोचना, 0 then 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 नंबर्स में से 6 और 7 यहाँ पे आ चुके हैं। अब आपके पास 10 में से 6 और 7 यहाँ पे 2 यहाँ ऑक्यूपाई हो चुके हैं, तो थर्ड पोजीशन के लिए कितनी अवेलेबिलिटी, कितनी चॉइसेस रह जाएंगी? 0 से 9 में से 2 नंबर 6 एंड 7 यहाँ आ चुके हैं, तो 0 से 9 में कितने नंबर्स बचे? 8 नंबर्स बचे हैं हमारे पास रिमेनिंग। यहाँ के लिए थर्ड पोजीशन के लिए आई हैव 8 चॉइसेस। अब क्योंकि रिपीट नहीं करना है, 8 में से कोई एक नंबर यहाँ आ जाएगा, लेट्स से 0 आ गया, 0 से 9 के बीच में 6 आ चुका है, 7 आ चुका है, 0 आ चुका है, 3 नंबर्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं। आउट ऑफ 10 नंबर्स 3 नंबर्स आर ऑक्यूपाइड हियर। इस पोजीशन के लिए 7 चॉइसेस आर रिमेनिंग, सो 8 into 7, and for last position 6 choices are there, so answer would be 8 into 7 into 6. 8, 7 और 6 ये numbers नहीं है, these are 8, 7 and 6 are the number of ways or number of choices. So your answer is C. First number is fixed, so number of ways is 1. Second is again fixed, so choice is 1. Third के लिए 8 choices, fourth के लिए 7 choices and fifth के लिए 6 choices. So your answer is 8 into 7 into 6, which is 336.